Hello, good morning everyone. Welcome to स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस स्टैंडर्ड थर्ड चैप्टर 4। चैप्टर का नेम से सी सॉन्ग। तो यहाँ पे हम वर्कबुक में जो क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस है वो फर्स्ट देखेंगे। आंसर द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन से वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी सेल। आंसर द चाइल्ड फाउंड द सी सेल ऑन द सैंड। ओके। सेकेंड नंबर, what did the child do with the shell? The child took the shell home. Third number, what did mummy do? Mummy held the shell to the child's ear. Fourth number, what did the child hear? The child heard soft, sweet and clear song from the shell. 5. Why was the child surprised? The child was surprised because he could hear the shell singing. ओके। तो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन आंसर से वो आपको राइट करना है। ये आपके वर्कबुक में राइट द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट है वेयर डू यू फाइंड सेल्स। तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन। ओके। व्हाट डिड द चाइल्ड फाइंड? ऑप्शन सी जो टिक किया हुआ है। थर्ड नंबर, द सेल वॉज कर्ली। वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सेल? ऑन द सैंड। ओके। What did the child do with the shell? Took it home. What did mommy do with the shell? Held it to the child's ear. What did the child hear? A song. Okay. Next पेज में दिखेंगे। The song was soft, sweet and clear. 9. What did the child feel on hearing the song? Surprise. Which word in the poem rhymes with hand? तो sand. Rhyming words क्या है? Sand. Which word in the poem rhymes with ear? तो clear. Which word in the poem rhymes with through? तो to. Write the opposites of the given words. तो यहाँ पे opposite write करना है। took तो gave, inside तो outside, pick तो drop, bitter तो sweet, hard तो soft, came तो went, falls through, straight curly. Okay. Write 3 rhyming words: bound, found, sound, ground. Trick, kick, pick, sick. Lamb, came, name, shame. Sook, book, look, took. Land, bend, hand, sand. Okay. Read the lines and fill in the blanks. तो आपको read the lines, तो आपको ये lines read करनी है। उसके बाद आपको fill in the blanks write करनी है। The seed is buried deep into the ground. तो यहाँ पे क्या आएगा? deep. A plant lay asleep inside the seed. तो plant. The sunshine asks the plant to creep to the light. तो sunshine. The raindrops ask the plant to wake up. तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, तो wake up आएगा। The word bright rhymes with light. Okay? राइट द साउंड्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड थिंग्स। तो आपको यहाँ पे साउंड्स राइट करना है। तो कैट्स का है म्यू, कॉक्स का क्या आएगा? तो यहाँ पे कॉक्स का साउंड है क्रो, काउस का तो मू, डॉग्स तो बार्क, डोंकीज तो ब्रे, डक्स तो क्वेक, गोट्स ब्लीट, हॉर्सेस नीट, लायन रोरर, माइस क्वेक, monkeys chatter, owls hoot, pigeons coo, bells ring, clocks tick, guns boom. ओके, boom। तो ये सारे साउंड है। ओके। नेक्स्ट लिखेंगे अ लिटल फिश स्टोरी, उसके बारे में। आंसर द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी? देयर आर मिलियंस ऑफ फिश इन द सी। Why was the little fish unhappy? The little fish was unhappy because he was very small. What would make the little fish happy? The little fish would be happy if he were larger. What happened to the fish one day? The fish were caught in a net one day. What happened when the hull was being emptied into the boat? When the hull was being emptied into the boat, the little fish wriggled through the mess and slipped back into the water.
तो ये क्वेश्चन के आंसर है, तो आपको ये वर्कबुक में राइट करने हैं। ओके। 6 नंबर, वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश? द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश बिकॉज ही कुड रिगल थ्रू द मैश एंड सेव हिज लाइफ। ओके। राइट द करेक्ट ऑप्शंस। हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सीज? ऑप्शन डी, millions. The little fish was unhappy. The little fish was unhappy because he was very small. Okay. The little fish thought that if he would be larger, he would be happier. The little fish believed that if he were larger, he would be happier. What is a group of fish called? School. तो यहाँ पे ये है स्कूल, क्या आएगा ऑप्शन स्कूल। व्हाट हैपन टू द फिश? दे वर कॉक्ड इन अ नेट। द लिटल फिश wriggled through the net and slipped back into the water. Fill in the blanks. The little fish was unhappy. Okay. Second number, the little fish was unhappy because he was very small. The little fish thought that he would be happier if he were larger. A group of fish is called school. The fish were caught in a net. The smallest fish wriggled through the net and slipped back into the water. Right, true or false? The little fish was happy. Wrong. The little fish was unhappy because he was very small. Right. The little fish thought that he would be happier if he was smaller. Wrong. The fish were caught in a net. Right. The little fish wriggled through the net and saved himself. True. Write 3 rhyming words. Whole, small, tall, wall. Stool, rule, lul, school. Sting, blink, think, wing. Taste, best, chest, rest. Stripe, knife, life, wife. ओके, तो क्या है ये राइमिंग वर्ड्स। नेम द वाटर एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर के नीचे उसके नेम राइट करना है जो यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है। तो फर्स्ट है डक, फ्रॉग, फिश, टर्टल, स्वान, क्रेन, whale and crocodile. Fill in the blanks with the correct forms of the verbs in the simple present tense. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से आपको यहाँ पे राइट करना है। मेहुल राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। किरण रीचेज स्कूल एट 10 o'clock। तो यहाँ पे सिंपल वर्ब दिया गया है तो आपको प्रेजेंट टेंस के हिसाब से राइट करना है। ओके। वी वॉक इन द गार्डन। द बॉयज़ प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। आई लाइक टू वॉच टीवी। अमर फिनिशेस हिज होमवर्क। तो यहाँ पे फिनिश है तो आपको यहाँ पे फिनिशेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से राइट करना है। ओके। यू हेल्प योर फ्रेंड। नितिन लव्स हिज पेरेंट्स। वी रीड स्टोरी बुक्स। मिस्टर दवे टीचेस अस मैथ्स। एक्सरसाइज 8 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे आपको सिंपल पास्ट टेंस के हिसाब से वर्ब राइट करना है। तो फर्स्ट है द चिल्ड्रन क्लैप। तो द चिल्ड्रंस क्लैप्ड देयर हैंड्स, ईडी आएगा लास्ट में। ओके, वर्ब में। ग्रैंडफादर वॉक्ड इन द गार्डन। गीता रन, तो रैन हो जाएगा पास्ट टेंस में, क्या हो जाएगा रन का रैन। तो गीता रैन टू कैच द बस। टीना गिव, तो गेव, क्या आएगा गेव। टीना गेव मी हर पेन। माला राइट, तो राइट की जगह पास्ट टेंस में रोट। माला रोट अ पोएम। वी क्लीन, तो क्लीन, वी क्लीन आवर क्लासरूम। यू ईट, मतलब कि एट, क्या आएगा पास्ट टेंस में एट। यू एट एन एप्पल। दे क्लोज, तो दे क्लोज्ड द विंडोज। आई सो एन एलिफेंट इन द जू। रामू वाटरेड द प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट पेज में फटाफट फिनिश करना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, an army of soldiers, a pile of books, a band of musicians, a flock of birds, a pack of
wolves, a herd of cows, a bunch of grapes, a crowd of people, a swarm of bees, a gang of thieves। तो यहाँ पे ये है करेक्ट वर्ड्स। ओके, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे राइट करना है, ये 3 पर्सन से यहाँ पे, तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ओके, ऐसे आपको राइट करना है। तो यहाँ पे है लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। यहाँ पे है शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ओके, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट। इससे आपको 3 वर्ड्स राइट करने हैं। ओके, लाइट, लाइटर एंड लाइटेस्ट। फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट। हैवी, हैवियर एंड हैवीस्ट। आपको ये नीचे पिक्चर के नीचे आपको राइट करना है। फास्ट है तो वही पिक्चर के नीचे आपको फास्ट राइट करना है, और फास्टर जो भी पिक्चर के नीचे राइट किया उस पिक्चर के नीचे ही आपको राइट करना है। ओके, 11 नंबर, राइट द वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। कॉस्टली तो कॉस्टलियर, कॉस्टलिस्ट। चीप तो चीपियर एंड चीपेस्ट। कोल्ड तो कोल्डर, कोल्डेस्ट। होटियर तो होटेस्ट। सैड तो सैडर एंड सैडेस्ट। हैप्पी तो हैप्पियर एंड हैप्पीस्ट। डर्टी तो डर्टियर एंड डर्टीस्ट। क्लीन तो क्लीनर एंड क्लीनेस्ट। न्यू तो न्यूअर एंड न्यूस्ट। ओल्ड तो ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। हार्ड तो हार्डर एंड हार्डेस्ट। सॉफ्ट तो सॉफ्टर एंड सॉफ्टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 का ये वर्कबुक सॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। तो आपको ये सेम रेडी करना है एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।